Okay, so very good morning to all of you, children. Today we are going to start revising this chapter planning. I've shared a PDF with you in which carries short answer type questions. So we are going to discuss answers of the same on the board. Okay? So let's start with question number 1. I am reading the question. Planning is not an exclusive function of top level management, nor of any other particular department. Do you agree? Give reason in support of your answer. Give reason. Planning is not the exclusive function. So, okay. दो बच्चे हैं मिताली और अनिरुद्ध. अनिरुद्ध से पहले पूछ लेते हैं. Yes, अनिरुद्ध. मैम इट इज ट्रू कि वो एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है केवल टॉप लेवल का, क्योंकि प्लानिंग हर लेवल में होती है, बस टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन गोल स्टेट करते हैं और डिपार्टमेंट्स प्लानिंग करके अपने अपने गोल्स होते हैं, जो भी उनके होते होंगे गोल्स वो डिसाइड करते हैं। और वो सभी गोल्स ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक ही लेकर जाते हैं। और प्लानिंग डिफर करती है लेवल टू लेवल, मतलब उसकी सारी बातें आपकी करेक्ट है, सारी बातें करेक्ट। क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट मींस मुझे एक दो लाइनों में आंसर बता दो कि कौन सा एक, मैं हिंट दे देती हूँ, कोई एक फीचर ऑफ प्लानिंग यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, वो क्या है? मिताली बताने लगी। यस मिताली। Planning is all pervasive. Planning is yes. हाँ जी planning. मिताली you continue. That is, planning is carried out by all the departments and all the organization to achieve the objective, and it is not exclusively meant for top management or for lower management. Both of you did a great job. Planning is all pervasive. It is not exclusively for top level. कौन सा feature highlight हुआ? यहाँ पे all pervasive वाला feature highlight हुआ है। उन्होंने बोला है ना reason दो, तो आपने इस तरह से लिखना है. From the above lines, we can identify that planning is all pervasive. This feature of planning is being highlighted here. और उसको एक दो लाइन में explain करते हैं. Question number 2. The top level management undertakes planning for the organization as a whole, and the middle level undertakes the planning for their respective departments, whereas the lowest level of supervisor undertake day-to-day operational planning, identify and explain the related feature. This is, I think, one and the same. Same ही है, यही वाला पूछा है ना? तीनों लेवल्स की बात करी है, तो फर्स्ट और सेकंड आंसर सेम है. स्किप इट. क्वेश्चन नंबर 3. Is planning an intellectual activity of thinking rather than doing? Elaborate. Yes. बेटे मैं चाहती हूं कि कोई और बच्चा भी हैंड रेज करे. सिर्फ दो ही बच्चे बार बार हैंड रेज कर रहे हैं. ओके सान्या. यस. This is true because planning is a mental exercise as it involves logical and systematic thinking rather than any guesswork. So it is an intellectual. It is a mental exercise. ये भी क्या है हमारा? ये फीचर है. क्वेश्चन नंबर 3 है ना. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया. It is a mental exercise. You are very right, because in which we will plan or think what we want to do in the coming future. Elaborate करना है, इसको explain कर देना दो लाइन में. ठीक है. Question number 4. Planning is a process of decision making. Explain. Muskan. हाँ जी बेटे. Yes, ma'am. Planning involves decision making because after taking many decisions, the manager ends with a result, and he applies that result on the process he is doing and achieves his or her goal. इसमें given ही है, उसको बस explain ही करना है. तो it is a process of making decision, तो उसको explain कर देना. So that's clear. Question number 5. थोड़ा सा tricky हो गया अभी. इसमें पूछा क्या है? पहले मैं last line से पढ़ लेती हूँ. कहता identify and explain the related limitation बतानी है planning. तो limitation दिमाग में रखनी, सारी 4-5 जो हमने पढ़ी थी. फिर सोचो. The telecom company A was initially offering एक recharge था 198 का, unlimited call थी, उसमें 1 GB डाटा था per day. इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना तुमको, इंटरनेट की बात हो रही है. उसके बाद बी कहती कंपनी है, वो चीपेस्ट प्लान देता है मार्केट में 1 GB डाटा पर डे और रिचार्ज सिर्फ 149 का. कंपनी ए जो है उन्हें had to make changes in its two prepaid plans due to competition.
विद कंपनी बी, तो उनको अपने 2 प्लान्स को चेंज करना पड़ा कंपटीशन की वजह से। कॉन्सिक्वेंटली कहते हैं इट हैज टू इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ इट्स ओन प्लान्स, उनके अपने ही प्लान्स फेल होने शुरू हो गए। उनको क्या करना पड़ा, उनको अपने उन प्लान्स की वैलिडिटी बढ़ानी पड़ी। जैसे मान लो किसी ने अगर रिचार्ज कराया 1 मंथ का, तो हमें उसको 1.5 मंथ का टाइम देना पड़ा, लाइक दैट। ओके, सो मेनी स्टूडेंट्स आर नाउ रेडी टू आंसर। Kanika, beta, you can answer. Kanika. Management may not work in dynamic environment. Management की planning. Sorry, planning may not work in the dynamic environment. Okay, all are agree with this answer, or anyone has some other answer? Ma'am, Arshpreet, you want to say something? yes, ma'am. Planning reduce creativity. नहीं बेटे, इसमें क्रिएटिविटी की बात कहाँ है? क्रिएटिविटी तो तब होता है जब यहाँ कुछ ऐसा लिखा होता है कि कंपनी ने प्लान बना के दे दिया and the junior department they need to follow the same plan, so something like that will be given, then it may be the creativity point. मैम Yes, Anirudh. मैम यहाँ ये भी पॉइंट आ सकता है कि गारंटी सक्सेस नहीं होती, जैसे उन्होंने प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो या ना हो, ये डिपेंड, ये गारंटी थोड़ा इस बात की। लेकिन यहाँ पे सक्सेस की बात नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने यही लिखा है कि प्लानिंग उन्होंने करी, लेकिन ड्यू टू कंपटीशन दे नीड टू चेंज देयर प्लान, उनको अपने प्लान्स की वैलिडिटी बढ़ानी पड़ी, तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, दैट कुड बी द, आई थिंक इट शुड बी द एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमने क्या किया है, दैट प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, वो पता कब होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होता कि फेल होगी प्लानिंग या कंपनी ड्रॉप हो गई, कुछ लॉस हो गया, ऐसा कुछ होता तब हम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान व्हिच इंक्लूड 3 डायमेंशंस। 3 तरह की डायमेंशंस होती है स्ट्रेटजी में, नेम द डायमेंशंस। लिखवाई है आपको, लिखवाई है ना? Check into your notes. Muskan wants to answer. Yes, Muskan. When determining long-term objective, allocating resources, and adopting particular course of action. ठीक है, course of action एक particular decide करना, long term plans बनाने, और तीसरा resources allocate करने, वो 3 dimension थे। Not an important question. पर चलिए हमें आता है तो that's great. Question number 7. Policies and procedures are interlinked. Do you agree? Give reason. Policy और procedure basically इन्होंने क्या पूछा है? Difference between पढ़ा था, आपको होमवर्क दिया था, पढ़ा था आपने, वहां से आंसर देना है। मान्या, you want to answer? Yes. Policies and procedure, उनमें कुछ आपस में common है, कुछ different है, वो you can answer. Procedure and policies are interlinked because a specific procedure is required, a series of steps is required to enforce a policy. So they are interlinked with each other. ठीक है, बेसिकली मुझे तो लग रहा है कि इसमें डिफरेंस बिटवीन द टू ही आना चाहिए। हाँ, दोनों इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग के टाइप्स हैं, सो समवेयर और द अदर दे आर इंटरलिंक्ड, बट पॉलिसीज जो जनरल गाइडलाइंस होती है, प्रोसीजर स्पेसिफिक होता है, मेथड बताता है, तो एज सच सिमिलैरिटी तो इसमें कोई नहीं है, बस यही सिमिलैरिटी कि दोनों अपने अपने टाइप के प्लान हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें मेरे हिसाब से डिफरेंस बिटवीन द टू ही आना चाहिए। Okay, next है question number 8. Does planning provide false sense of security to the management? क्या लिखेंगे इसमें? हाँ कि ना? आपने प्लानिंग कर ली, आपको लगता है आपका प्लान बहुत अच्छा है, अगर आप वो देखते हो कुछ इन्वेस्टिगेटरी सीरीज या समथिंग लाइक दैट, तो आपको पता होगा, वो बोलते हैं ना कि हर क्रिमिनल को लगता है कि मेरा प्लान परफेक्ट है और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन वो एंड में पकड़ा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लूप होल हो जाता है। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है कि जो प्लान है वो कहीं आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो नहीं दे देता। यस, दिस इज ट्रू,
as a manager, when we plan, we feel that our plan is going to bring success to us. Yes, Drishti wants to say. Drishti. It does not guarantee success. Sometimes managers think planning solve all their problem, but it may neglect their real work and affect their attitude to be faced by organization. Yes, definitely correct answer. मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजर ने प्लान बनाया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता, मेरा प्लान तो बहुत अच्छा है, फेल हो ही नहीं सकता. ठीक है, वो मनी हाइस्ट देखी ना आपने सबने. So he made a plan to rob a bank. So he think that his plan is not or never going to be failed. But there are loopholes of every plan. So it does not guarantee success. No plan guarantee success. हो सकता है कि प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल हो सके, हो जाए, लेकिन गारंटी कोई नहीं है. वो वाला पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लास्ट में पढ़ती हूँ. पहले कहता है आइडेंटिफाई द 2 टाइप्स ऑफ प्लान जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं. तो आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आइडेंटिफाई करिए और मुझे बताइए. विप्रो हैज, जिसको मिल जाएगा आंसर वो मुझे बताएगा. विप्रो हैज इंट्रोड्यूस एलीट नेशनल लेवल हंट, टैलेंट हंट, freshers hiring initiative to attract the best of this and this and this. The aim is to initiate and enable an equal opportunity for employment for most deserving talent across all engineering streams in India. It will solely be at the discretion of the Wipro to permit, restrict or participate of any candidate, whether eligible or not, in the selection process. तो ये वाली लाइन से मुझे रूल पता चल गया है. रूल इज देयर. Which line tells me the rule? वो कहते हैं discretion of the Wipro to permit or restrict. किसको permit करना है, किसको restrict करना है, उसके जो rules हैं. कोई किसको eligibility देख के रखना है, बिना eligibility के रखना है, ये उनका अपना rule होगा कंपनी का. So this will be the rule. आगे पढ़ लेते हैं. Upon selection of the online assessment, candidate will require to go through the procedure. Is this procedure means sequence of steps are to be followed. Sequence है ना, वो कह रहे हैं सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन असेसमेंट होगी, फिर कैंडिडेट क्या करेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू के बाद एचआर के साथ इंटरव्यू होगा, एंड लाइक दिस सम स्टेप्स, सम प्रोसीजर इज देयर. ठीक है मैम, मेथड नहीं आ सकता? मेथड भी आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि यहाँ मेथड की भी बात हो रही है. ऑनलाइन असेसमेंट मेथड इज देयर, बट 1 2 3 मेथड्स, क्योंकि स्टेप्स की भी बात हो रही है. ऑनलाइन असेसमेंट है जिसमें उनको एक टेक्निकल इंटरव्यू देना है, जो फिर उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू के बाद एचआर का इंटरव्यू होगा. तो बेसिकली मेथड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर. तो आंसर प्रोसीजर होगा, मेथड नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे मेथड है. एक तो ऑनलाइन असेसमेंट एक तरीका है, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू भी है, लेकिन एक मेथड, उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा. सो स्टेप्स आर देयर, प्रोसीजर विल बी द आंसर, नॉट मेथड. ठीक है, मेथड ऐसे होता अगर यहाँ पे यही लिखा होता कि दे हैव सिलेक्टेड ऑनलाइन असेसमेंट टू सेलेक्ट द कैंडिडेट, तो ऑनलाइन असेसमेंट इज अ मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो तब आपका आंसर मेथड हो जाता. ठीक है जी, क्लियर है. चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज प्री रेक्विसाइट ऑफ कंट्रोलिंग. डू यू एग्री? इसको भी रहने देते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का. कंट्रोलिंग का चैप्टर जब हम करेंगे ना, वहां पे प्लानिंग वाला दोबारा से आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ध्रुव वर्मा वर्क्स एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर. इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, टाइप ऑफ प्लान पूछा है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा. ही एंश्योर दैट द लर्नर skills and knowledge are assessed before the training program. He uses various evaluation techniques for this phase, like this and this and this and this and this and this. बड़ी सारी techniques उसने use करी. तो टाइप ऑफ प्लान बताओ. हाँ जी, हीना तनेजा. मैम मेथड होगा. How you can say this is a method? Method is there. मैम learning skills before training वाली लाइन से. तो उसने बड़े सारी ऑप्शंस रखी कि हम ये स्कीम लगाएंगे, ये सारे मेथड्स यूज करेंगे ताकि हमारे बंदों को ट्रेनिंग मिल जाए. सो दैट इज ट्रू. देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स.
सो प्रोसीजर इज नॉट देयर. बहुत सारे मेथड्स हैं, पर बहुत सारे मेथड्स की कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, ऐसा नहीं है. सो दिस इज ओनली मेथड, नॉट एनीथिंग एल्स. क्वेश्चन नंबर 12. ऑल कैंडिडेट्स पूछा क्या है? प्लान. देख लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ. हर क्वेश्चन में टाइप ऑफ प्लान पूछा है, हर क्वेश्चन में केस स्टडी आएगी, टाइप ऑफ प्लान. All the candidates which wish to get promotion from clerical to officer in public sector bank, they need to apply for this test and appear in the exam, and then the candidate who are working as a clerk in nationalized bank have undergo the service for at least 2 years of period. Eligible होना चाहिए इसके लिए ये है. There are 2 channels of this and this and this. हाँ जी. हर्षिता गांधी के नाम से. हर्षिता. Ma'am, it is procedure. It is procedure. Hina, what do you want to say? मैम प्रोसीजर वाली बोलनी थी वो फर्स्ट लाइन से कि अगर वो जॉब की. एक ही पूछा है ना, टाइप्स पूछा है बेटे, एक नहीं है इसमें, एक और भी आएगा. ये तो ठीक है, आपने बता दिया उसका ये स्टेप है, पहले ये करेगा, अप्लाई करेगा, फिर अपीयर होएगा, लाइक दैट. समथिंग एल्स इज आल्सो. रूल इज आल्सो देयर बेटे. रूल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज गिवन. अगर किसी बंदे को क्लरिकल से ऑफिसर के रैंक पे जाना है तो एटलीस्ट 2 इयर्स उसको क्लरिकल में जॉब करनी है, उसके बाद उसको प्रमोशन मिल सकती है. सो दिस इज अ रूल व्हिच इज बीइंग मेड एंड इट्स टू बी फॉलोड. ठीक है. सो दिस इज रूल आल्सो. 2 टाइप्स आर देयर. ये टाइप और टाइप्स ये भी ध्यान रखना है कि पूछे कितने हैं, 1 और 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई वाला. टाइप्स 2 टाइप्स पूछे हैं इसमें भी, उसमें भी 2 ही पूछे हैं. As per CBSE, the regular student who have board exam CBSE affiliated school से मार्च में होंगे, उनका रिजल्ट आएगा. और कंपार्टमेंट जो है अगर उनकी, तो ऑनलाइन मोड के थ्रू उनकी कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे. दे नीड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस एग्जाम एंड पे इतने रुपए फी देनी पड़ेगी और किसी भी इंडियन स्कूल से. ओके, मुस्कान सियान गॉट द आंसर. यस बेटे. रूल मैम. रूल कैसे? हाउ रूल? मैम उसमें लिखा नहीं है कि पहले बोर्ड एग्जाम जो कंपार्टमेंट वाले हैं उनका बेटे प्रोसीजर है, ऑनलाइन मोड से होगा. प्रोसीजर है. दिस इज द प्रोसीजर. पहले वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, उसके बाद 200 रुपए फीस भरेगा, फिर इस तरह से उसका एग्जाम होगा. दिस इज द प्रोसीजर. रूल इज देयर. इसकी अगली लाइन में रूल है, देखिए कहता है कैंडिडेट जो फेल हो जाएगा कंपार्टमेंट में, दोबारा अपीयर does not appear for the same will be treated to be failed. ये रूल है सीबीएसई का कि अगर आप कंपार्टमेंट में अपीयर नहीं होते हो, कंपार्टमेंट आई है आपकी, तो यू विल बी कॉल्ड एज फेल स्टूडेंट. दिस इज रूल. ठीक है. रूल एंड प्रोसीजर बोथ आर देयर. नेक्स्ट पढ़ते हैं. जय लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट है, उसके लिए डिटेल्ड स्टेटमेंट बनाई है. ये वाली लाइन कहीं हमने पढ़ी थी, ध्यान से याद करो. न्यू प्रोजेक्ट के बारे में. प्लेस सेफ्टी मेजर्स दैट द कंपनी इज प्लानिंग टू परस्यू. ओके, काशवी को आंसर भी मिल गया. काशवी, यू हैव गॉट द आंसर. मैम डिटेल स्टेटमेंट से ऑब्जेक्टिव. इसके आगे भी पढ़ो सपोर्टिंग, क्योंकि एक ही पूछा है ना, टाइप ऑफ प्लान एक ही पूछा है इसमें. ओनली 1 टाइप ऑफ प्लान इज आस्क्ड और ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, तो ऑब्जेक्टिव तो आंसर नहीं हो सकता. पढ़िए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन. सान्या हैज गॉट द आंसर. सान्या, यस यू कैन आंसर. Program, हाउ इट इज प्रोग्राम? because it is written detailed statement which outlines objectives, policies, procedures. वेरी गुड. यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, बिकॉज प्रोग्राम इज समथिंग विच कैरीज ऑल अदर डिटेल्ड स्मॉल प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, रूल, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर, इन सब को कंबाइन करके जो हमारा प्लान बनता है, दैट इज प्रोग्राम. तो प्रोग्राम इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइप ऑफ प्लान पूछा. अगेन 1 टाइप ऑफ प्लान. लकी शू कंपनी ने इतने जूते बनाने के लिए एक्सपेक्ट किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. इन्वेंट्री एंड प्रोड्यूस 4000 जूते उन्होंने बना लिए मई में. प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी 500 रुपए पर जूता आ गई. फिर उन्होंने इतने पैसे स्पेंड किए, इतने रुपए लगे, विच इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. द कंपनी आल्सो एक्सपेक्ट कि इतनी कॉस्ट जो है इतनी वो पे करेंगे, डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं होगी, इंश्योरेंस में लगाएंगे, ऐसे. नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ प्लान? वंदना, यस वंदना.
वंदना, you can answer बेटे. वंदना, you can unmute yourself. वंदना को अनम्यूट की ऑप्शन नहीं है क्या आपके पास? है तो काशवी आप आंसर कर दो, कोई बात नहीं. Budget. Okay, so this is budget. Why we can say this is budget? How, मतलब how is it budget? हम क्योंकि क्वालिटेटिव टर्म्स में बात की गई है. क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात की, दैट इज करेक्ट. मोर ओवर उन्होंने छोटी छोटी चीजें की, इतना पैसा यहाँ लगाएंगे, इतना पैसा यहाँ लगाएंगे, इतना यहाँ लगाएंगे. सो दे हैव डिसाइडेड हाउ मच टू स्पेंड वेयर, सो इट इज अ बजट. तरुण गुप्ता वर्क्स एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. टाइप ऑफ प्लान पूछा अगेन. एस्टेब्लिशिंग, कहता है इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिशिंग रेपो. रेपो बनाना चाहता है विद द पार्टिसिपेंट्स. ही यूजेस डिफरेंट वेज ऑफ ग्रीटिंग, एनकरेजिंग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, रिमेंबरिंग द फर्स्ट नेम, पेयरिंग अप विद द लर्नर्स, have them familiarized with one wearing these instructional techniques. So what is the type of plan? Mitali, yes Mitali. Method. नहीं, मेथड तो नहीं लग रहा मुझे. मेथड लगेगा. ओके, हिमानी भी कुछ कहना चाहती. हिमानी मैम प्रोसीजर. प्रोसीजर तो नहीं होगा, मेथड तो बेटर लग रहा है, प्रोसीजर से ज्यादा मेथड लग रहा है. सान्या आप बताइए क्या लग रहा है आपको? स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी भी मुझे लग रहा है. यस, स्ट्रेटेजी और मेथड दोनों में से कुछ एक इसमें होना चाहिए. सी बेटे, यहाँ पे बात क्या चल रही, पहले आप जनरल बात समझो. तरुण गुप्ता एक बंदा है जो कॉर्पोरेट ट्रेनर है. वो चाहता है कि मेरी ना, ट्रेनर होता है ना जो जैसे मान लो स्पीकर है, लोगों को मोटिवेट करता है, तो बड़े सारे लोग बैठते हैं उसके सामने, 100 बंदे, तो उन सब के साथ वो चाहता है कि मेरी रेपो अच्छी हो, मेरा नाम हो. जैसे संदीप महेश्वरी है, इज लाइक दैट. तो यू वांट टू मेक रेपो. तो उसने ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है कि लोगों में अपनी रेपो अच्छी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उनको ग्रीट करा करूंगा. ये एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी का एक टिप दे रही हूँ आपको. अगर किसी भी अननोन बंदे जिससे आप मिलते हो रोज रोज, आप उसको जानते नहीं हो, यू वांट टू मेक फ्रेंड विद the person, this is, it feels so good when you call the other person by his first name, his or her first name. जैसे अगर मैं आपको for example मैं कहूँ, ए लड़की इधर आ, ऐसे कर, girl you do this, boy you do this, it will not give a personal touch. In spite of this, if I will say, okay Ashwinder, how are you, you were not feeling good yesterday, so can you please give me the answer you. So when we call someone with their first name, we will start making personal connection with the person. Personal means not that type of personal, but personal means good relation, interpersonal relation अच्छे होते हैं जो हमने बिजनेस में पढ़ा. सो वो कहता है ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं सबको ग्रीट करता हूँ, अच्छे से ग्रीट करता है वो सबको. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी करता है कि ओके यू आर नॉट अटेंडिंग क्लासेस लास्ट फ्यू डेज, समथिंग हैपेंस टू यू लाइक एट योर प्लेस, इज एवरीथिंग ऑल राइट. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करता है अपने क्लाइंट्स के साथ, बात करता है, उनका नाम लेता है, उनकी फैमिली के बारे में पूछता है, घर के बारे में पूछता है, कई बार कुछ और बातें करता है, वेदर की बात कर ली, पॉलिटिक्स की बात कर ली. सो दिस इज द स्ट्रेटेजी ही मेक्स टू मेक गुड रेपो. आई थिंक दिस शुड बी स्ट्रेटेजी, बट मार्क दिस क्वेश्चन, आई विल कंफर्म दिस आंसर एंड देन लेट यू नो. ओके, क्वेश्चन नंबर 70. याजुर लिमिटेड implement क्या है इसका, टाइप ऑफ प्लान पूछा. ओके, implemented a comprehensive plan to ensure the total quality में. comprehensive plan किसमें बताया था आपको? comprehensive plan जिसमें आपको डिटेलिंग पता चलती है. ओके, 2-3 बच्चे हैं जिनको पता है. ओके, हिमानी यू कैन आंसर. मैम स्ट्रेटेजी. वेरी गुड, इट इज अ स्ट्रेटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कहता क्यों प्लान किस चीज के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट करनी है उसको, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन द कंपनी. फॉर दिस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट व्हाट ही इज डूइंग, उसने आगे देखो अब लिखा है अ कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व हो, सबकी इंप्रूवमेंट हो. माइन्यूट कहता है कि माइन्यूटेस्ट डिटेल भी जो है ना, जो काम कर सकती कंपनी के लिए, उसने उसके ऊपर भी काम किया. एंड देन प्रोसीजर रूल्स बजट विद इन द बोर्ड
पॉलिसी फ्रेमवर्क उसने बनाया टू इंटीग्रेट द क्वालिटी डिसिप्लिन इनटू द कल्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोग्राम नहीं हो सकता, ये प्रोग्राम हो सकता है? व्हाट डू यू से? आई थिंक इट शुड बी प्रोग्राम। एक बार प्रोग्राम की डेफिनेशन में पढ़ो तो क्या लिखवाया था आपको? Program is a detailed plan which involves all the other. Program is also a comprehensive plan. Its answer will be program. 17th का आंसर ना comprehensive plan ठीक है लिखा है. Strategy is also comprehensive, but strategy is not so vast. Strategy is a part of program. So when they are talking about, देखो strategy के अंदर तो नहीं procedure होता. स्ट्रेटेजी के अंदर रूल्स, बजट, प्रोसीजर ये सब नहीं होता. सो व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस, बजट बनाते हो, रूल्स बनाते हो, पॉलिसीज फ्रेमवर्क करते हैं, एंड देन प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड, इट इज प्रोग्राम. सो दिस इज दिस स्लाइटेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम, दैट स्ट्रेटेजी इज समवेयर लाइक प्रोग्राम, बट स्ट्रेटेजी इज मेड ऑन द स्पॉट. स्ट्रेटेजी इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम. सो दिस इज प्रोग्राम. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. मैकडॉनल्ड्स वेस्ट एंड साउथ इंडिया, इसमें भी टाइप ऑफ प्लान पूछा है. पढ़िए जरा क्या लिख रहे हैं. कहता दे वांट टू ऐड 20-30 आउटलेट्स खोलना चाहते हैं जिसमें मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट हो, हाई एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फ्यूचर रेस्टोरेंट्स हो. करंटली कहते हैं एक्सपीरियंस ऑफ द फ्यूचर 5 उनके पास है, बेंगलोर में है और मुंबई में है. दिस इज श्योर शॉर्ट आंसर. बताइए, मुझे तो पता चल गया. किसी को नहीं पता चला? हिमानी, यस. ऑब्जेक्टिव. वेरी गुड, इट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्योंकि आपको कंसाइज एंड कंफर्म टारगेट बता दिया है. हमें क्या टारगेट है हमारा? हमें 25 से 30 आउटलेट खोलने हैं. इतने हम खोल चुके हैं, इतने हमें और बनाने हैं. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव व्हिच वी वांट टू अचीव. लाइक राइट नाउ दिस इज अवर क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, एंड इट विल लीड अस टू द गोल. गोल हमारा हो सकता है पूरे ग्लोब में हम मैकडॉनल्ड की चेन बनाएं. That may be our goal, but right now this is the objective. Objective is the answer. Question number 19. Seema runs a catering business, जिसमें उसको ऑर्डर मिलते रहते हैं. She prepare and plans depicting the number of worker required to deliver the. Okay. Identify the type of plan. जिसमें उसने देखा कितने number of worker. Okay. Drishti wants to answer. Yes. Procedure. नहीं. प्रोसीजर कैसे बेटे? इसमें स्टेप्स की तो बात ही नहीं हो रही. वो कह रहे हैं कि एक लड़की है, वो बिजनेस करती केटरिंग का, उसको ऑर्डर मिला, उसने प्लान बनाया कि कितने बंदे चाहिए, नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू डू दिस. दिस इज व्हाट आई वांट नाउ. सी, आज का आपका यही काम है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पिछले एक हफ्ते से हम टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ रहे हैं. स्टिल इसमें कंफर्मिटी आपको नहीं आ रही है. अभी तक आपको क्लियरली पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सा प्लान, किस पॉइंट से हमें पता चलने वाला है कि ये कौन सा वाला प्लान है. सो टुडे आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स which will help you to identify कि this is the type of plan. Then only I think you will be able to do this. आपका क्या काम है? आपने सारे टाइप्स ऑफ प्लान दोबारा पढ़ने, डिफरेंस बिटवीन द टू आपने दोबारा से पढ़ने. ठीक है, सारे इनका प्लान्स का डिफरेंस पढ़ना है. और जो केस स्टडीज आपकी बुक में अवेलेबल है, आप आज उनको पढ़ोगे, एंड टुमारो वी विल कम बैक विद बेटर इंफॉर्मेशन. ठीक है, कीवर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, उन कीवर्ड्स की हेल्प से हम फिर स्टार्ट करेंगे.